मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक में स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं और इन 2 पार्ट्स में जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है इवलिन ग्लीनीज लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। It is a story of multi-percussionist Evelyn Glennie who can play nearly 100 musical instruments with perfection. She is deaf but can hear the sound with the help of vibration. अब देखते हैं इसमें फर्स्ट पैराग्राफ। Rush our crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but his experienced musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly डीफ। वो था एक हड़बड़ी में जो रेलवे स्टेशन का माहौल होता है वहाँ धक्का मुक्की हो रही थी और एक 17 वर्ष की लड़की जो अपनी आयु से भी कम दिखाई दे रही थी वो घबरा गई। यद्यपि वो जो ट्रेन का कंपन हो रहा था वहाँ पर उससे एकदम घबरा रही थी। उसे लंदन में एक प्रतिष्ठित जो है रॉयल संगीत अकेडमी पर उसका वो पहला दिन था और स्कॉटलैंड के किसी फॉर्म पर उत्पन्न किसी किशोरी के लिए वो जो माहौल था वो डराने के लिए इनफ था। पर एक म्यूजिशियन बनने की उसके जो एक कीन डिज़ायर थी उस लड़की को वो गंभीर रूप से बहरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। Evelyn Glenie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized that she had not heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was Evelyn 11 वो कहती है कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो 11 साल की हुई तो उसकी मदर ने ये बात नोटिस करी कि उसे वो पियानो बजा रही थी और उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह नहीं उठी और उसकी मदर कहती है मैंने तुरंत महसूस किया कि उसने वो नहीं सुना। इवलिन बहुत दिनों तक अपने मित्रों से अपने टीचर्स से यह अपना जो धीरे धीरे उसका बहरापन बढ़ता जा रहा था ये छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके और ज़्यादा उसे सुनने में परेशानी आ गई एंड it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. वो कहते हैं कि उनकी जो हेड टीचर थे, प्रिंसिपल थी, उन्होंने क्या कहा उसे कि उसके पेरेंट्स को कि आप इसे क्या करो, इसके कानों में सुनने वाली मशीन लगाओ और इसे जो है बहरों वाले बच्चे जहाँ पर बहरे बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में इसको भेज दिया जाए, ऐसी वो अपनी राय देती हैं। इवलिन कहती हैं कि यह जानकर अचानक ही सब कुछ जो है उसके लिए ख़त्म सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता उसकी लाइफ में। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that they wanted to play it too. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron जो Forbes था वहाँ पर spotted her potential. He began by tuning 2 large drums of different notes. Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. फिर लेकिन क्या हुआ, इवलिन ने हार नहीं मानी। वह सामान्य जीवन बिताने के लिए एक दृढ़ संकल्प कर बैठी थी। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चे एक जाइलोफोन बजा रही है। उसने वो कहा कि मैं भी उसे निश्चय बजाऊंगी। अधिकांश टीचर्स ने उसे क्या करा, एकदम
डिस्करेज्ड करा, उसको बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एक ढोल वादक जो था रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमता को देख लिया, समझ लिया। उसने 2 बड़े ढोल भिन्न भिन्न आवाज़ों में निकाल उस बजाए। वह कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो, वह कहते हैं अपनी अन्य जो इंद्रियां हैं उसकी बॉडी की, उससे महसूस करने की कोशिश करो। इवलिन कहती है मैंने अचानक महसूस किया कि मैंने ऊंचे ढोल का स्वर कमर से ऊपर महसूस किया और नीचे ढोल का स्वर कमर से नीचे महसूस किया। फॉर्ब्स ने इस जो एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया और शीघ्र ही इवलिन जो है उनने जान लिया, इवलिन ने, कि उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में कुछ स्वरों को महसूस कर सकती है। आवाज व तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को एकाकार करना मैंने सीख लिया। बाकी सब संकल्प और कठोर रियाज पर निर्भर था। अब उसने सीख लिया था कि जरूरी नहीं कि वह कानों से ही सुनकर उस चीज को महसूस करे, म्यूजिक को महसूस करे। वो अपने जो बॉडी के अनदर पार्ट्स थे उससे उस म्यूजिक को महसूस करना धीरे धीरे सीख गई थी। She never looked back from that point onward. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from the orchestral work to solo performances. At the end of her 3 years course she had captured most of the top awards. और उसने इस मोड़ के बाद, इस मूवमेंट के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने क्या करा, जब वो कई बार वो घूमने बाहर टूर पे भी गई, इंग्लैंड के दौरे पर भी गई, और अब वह 16 वर्ष की हो चुकी थी, तो उसने अपने संगीत को ही अपना जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। उसने रॉयल संगीत अकेडमी के सामने अपनी प्रस्तुति दी। अकेडमी के इतिहास में उसने सबसे अच्छे अंक पाने वालों में से वो एक स्टूडेंट ऐसी थी। धीरे धीरे वो सामूहिक गायन वादन पर एकल वादन की प्रस्तुति की और भी आने लगी। वो अकेले परफॉर्मेंस देने लगी और जब तक उसका 3 साल का पाठ्यक्रम पूरा हुआ वो उसे बहुत सारे पुरस्कार जब तक मिल चुके थे। इस तरह उसने अपनी जो कमजोरी थी उस पर विजय प्राप्त करनी स्टार्ट कर दी। स्टूडेंट्स, आप आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।